अब यहाँ से निकल कर मैं कुछ साइट सीइंग करूँगा और साइट सीइंग करने के बाद यहाँ से अगले पड़ाव की तरफ मैं मूव करूँगा। जो भी हो वो मुझे नहीं पता कहाँ है, बट निकलूँगा यहाँ से। अब धूप काफ़ी अच्छी है, पहाड़ों पर बहुत खूबसूरत लगेगा बाइक राइड करने में इस वक्त। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू राइड थ्रू द वैलीज ऑफ ऊटी। ओके, लेट्स सी। सिग्नल कहाँ है भाई? सिग्नल पर बंदा मिल करके हमारे पास वापस करेगा मुझे, पता नहीं कौन से सिग्नल पर है वो। रुको जरा, सब्र करो। बढ़िया है यार इस जगह का। रात में काफ़ी लाइट से एकदम चमक धमक थी और इस वक्त बेहतरीन सूरज, पीछे पहाड़। मतलब दिन में भी मज़े हैं, रात में भी मज़े हैं। काफ़ी खूबसूरत है यार। डोडा बेटा पीक अब जा कर के क्या करेंगे? 7 किलोमीटर है तो एक बार जा सकते हैं। कोयम्बटूर तो नहीं जाएंगे, डोडा बेटा पीक यही शायद है। मैसूरू बोटानिकल गार्डन की तरफ। ओके, दो सौ पूरा चल जाइए, पता पीक चल रहा। बहुत जल्दी जाओ, अच्छा है जगह। हाँ, आपका अच्छा क्लाइमेट है, आज बारिश नहीं है। निकलता हूँ मैं। ओके बाय। Locals are standing at the roadside waiting for the bus to go to their respective jobs. यार ट्रैवलिंग के लिए तो बढ़िया होता है, बट मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता होगा ये सब। इवन दो दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, द लाइफ इज टफ ओनली। वेल, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट being accommodated to a particular type of environment. So if you ask the people who are living there, they are like chill only, right? यहाँ से ये व्यू देखो यार, क्या बढ़िया लग रहा है। और टोपोग्राफी जो है ना उस जगह की एकदम अनइवन है, ऊपर नीचे, बट होम्स हैव बीन बिल्ड अकॉर्डिंगली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। पिछले वीडियो में मैं ऊटी तक आया था। रात में मैं रुका हूँ ऊटी में और कुछ साइट सीइंग की है, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर रहा था, तो आपने वो वीडियो शायद देखा होगा। आई बटन, आप इसे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन नज़ारे थे वहाँ पर भी आते समय वक्त रास्ते में। अब आज का एजेंडा ऑफ द डे ये है कि यहाँ से निकल करके जो पॉपुलर स्पॉट्स हैं कुछ उन्हें कवर करना है, जिनमें एक फेमस है, एक तो पाइकारा फॉल है और एक मेरा फेवरेट स्पॉट है द कैंप साइट। उस कैंप साइट पर मुझे रुकना है। इफ़ पॉसिबल मैं चाहता हूँ वहाँ पर सनराइज़ को कवर करना। सो ओके, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स आर अबाउट टू कम इन दिस वीडियो। Man, just see this. I just traveled around 15 kilometers from the Ooty and the weather was so clear, so pretty was there. And just after that 15 kilometers, see the adventurous mood the wind has got into. See the mist around the forest, man, it's really marvelous. Oh. हाय हाय, इतना सुकून। In this weather, the riding becomes an adventure too. You have to be careful while enjoying these scenes also. And especially if you are riding on the mountains, first of all, visibility is already low and there are sudden turns also. So, well, till now it's all good.
weather is quite awesome, the view is awesome, the lush green mountains and the curvy roads. That's what it makes things good, right? Okay, so where I have to go? Take a turn. Well, I think I have almost reached to Doda Beta. Yeah, this is it. That's the Doda Beta peak. So I'm not going to put this the video in this one because obviously I have already covered it as a separate video. So, well, skipping from this point, let's take a turn back. Wow, that's nice combination. The whole family is in the same club. Oh, hello. Cute little girls are chortling around. You see the mist is floating through the air, man. It's really... The breeze is going through my ears and giving a chill effect down the spine. See the road, man. Just a few meters and the visibility is very low. The road seems wet also because fogs have been condensating on the road. People are also there stopping to enjoy this beautiful view. One thing I observed this time is that a lot of bikers I see this time. Yeah, previously it was not so much bikers riding down these turns, but during the monsoon, you see, man, like, yeah, everyone likes the monsoon, the combination of monsoon and mountains, and especially if you are a rider, you have to be here. शॉर्टकट लेने के चक्कर में गूगल मैप में लगता है गलत रास्ते पे ला दिया है भाई। इतना खूबसूरत रास्ते पे मैं एंजॉय कर रहा था और ये क्या है, पतले से रास्ते हैं, पूरा जंगल की तरफ ही ले जा रहा है यार। ये तो पता नहीं कहीं निकलेगा भी कि नहीं। कब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये जंगल कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला जा रहा है। सडन टर्न्स, बहुत नैरो रोड, स्लिपरी। ओह, this is where it leads to. Well, and all good. The view is so awesome. No problem, Google Map, you are okay, man. And here it is, my dear precious. This is what made this whole journey possible. So, obviously, I would like to take a moment to thank it. अमेजिंग मैन, क्या खूबसूरती के साथ ये झरना उतर रहा है।
वाटरफॉल है ऊपर। अब मैं पाइकारा वाटरफॉल को ही कवर करने वाला हूँ अगला। वैसे ये लेक बहुत खूबसूरत है, अगर आप आएँ यहाँ पर तो ज़रूर आएँ इस जगह पर। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है एंड द होल थिंग इज़ लाइक ओवरऑल अमेजिंग मैन, रियली माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग। चलते हैं वापस यहाँ से, काफ़ी थकान हो जा रही है चढ़ने में, बट क्या करें, जगह इतनी खूबसूरत है, करना ही पड़ता है ये सब चीज़ें। बैग मैंने लिया हुआ है भारी सा, उसको लेकर के चढ़ाई करना ना, इट्स रियली लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट फॉर दिस व्यू मैन एनीवन वुड डू दिस। अमेजिंग लश ग्रीनरी एंड दिस silence of this park, wonderful। ऊपर की तरफ ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो पूरे घने कोहरे से अभी तक ढके हुए हैं, और ये जो रिमझिम बारिशें शुरू हुई है ना, उससे तो अलग ही इफ़ेक्ट आ रहा है। इट फील्स लाइक यू आर रियली इन हेवन। ऐसे जब भी मैं पुराने घर देखता हूँ तो मैं एक सोच में गुम हो जाता हूँ कि इनका क्या इतिहास रहा होगा, किस तरीके से ये आबाद रहे होंगे और फिर उजड़े होंगे, सदियाँ गुजारी होंगी नहीं इन्होंने इस जगह पर। बंदरों का आतंक ख़त्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, अभी किसी पर तो उन्होंने अटैक किया। ये घरों का स्ट्रक्चर देखो, एकदम सेम टाइप के, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं यार ये तो। वो जो आप देख रहे हो ना ऊपर, वो ना एक टोडा हाउस है। यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ रहती हैं और उसमें सबसे पॉपुलर ट्राइब्स हैं वो टोडा ट्राइब्स हैं। अभी मैं वहाँ पर मैगी खा रहा था ना, तो वहाँ पर भी टोडा ट्राइब्स के लोग थे, वो जो मैगी बनाने वाले थे। लैंग्वेज भी उनकी अलग थी तमिल से, तो वो इनका स्पेसिफिक आर्किटेक्चर ऐसा होता था। उनका जो घर होते थे ना, कल्चरल घर होते थे ना, हाउसेस, वो इस तरीके के होते थे। काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। अगर मुझे वो पाइकारा मिल गया तो मैं कवर करूँगा, अदरवाइज आई विल टेक ए यू टर्न। मैं फिर से यूटी जाऊँगा, ऊटी में मैं कुछ खाना पीना का इंतज़ाम करूँगा, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा कैंप साइट अगली सुबह सनराइज़ के लिए। एकदम मतलब घना जंगल, बस ये रोड बन गई है, गनीमत है कि एक रोड बना दिया है यहाँ पर, otherwise it's nothing less than a jungle। तो कितने देर बाद आज साफ सेटलमेंट देखने को मिला है। हालत खराब हो गई है, उस रोड पे नहीं जाना है मुझे, यहीं से कहीं से इधर ही रोड से निकल जाएगा, वापस हो जाऊंगा।
चलो यार बस करते हैं अभी। बहुत मेहनत किया भाई इसके लिए, बहुत। Okay, so this left way goes to the Paikara Fall, but here seems to be a barricade. They have closed it, and parking. So we have to do the parking on the roadside only. Yeah, a lot of vehicles have been parked here. So let's see some space so that I can park too. Where should I? Okay, yeah, space enough here, so I can easily park it. Okay. तो इस गेट से जो वाटरफॉल का मेन व्यूइंग पॉइंट था वो अराउंड 500 मीटर्स दूर था। तो ई रिक्शाज अवेलेबल थे और गाड़ी चला के मैं इतना थक गया हूँ कि आई डिडंट प्रेफर इट टू वॉक। ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और ये रेलिंग्स हैं ताकि आप उस तरफ क्रॉस करके ना जाएं, और काफ़ी घने जंगल भी दिख रहे हैं यहाँ से। वाटरफॉल शायद एट द टिप ऑफ दिस स्टेप्स होगा लास्ट एंड पर। I try to keep my camera off the people because obviously there is something called privacy, but it's very difficult. So as much as I can, I try to avoid people coming into my video without their consent. So if anyone comes, I'm really sorry, man. It's not intentional. तो ये है वो वाटरफॉल जिसके लिए इतना मेहनत किया मैंने। बढ़िया है, इट इज वर्थ इट। People have been flocked to enjoy this scenic view. अब यहाँ से फुल फ्रेम में आ रहा है ये पूरा वाटरफॉल एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, राइट? साहब चंगासी। So now I'll be heading back to Ooty again. ये लोग तो आ रही हैं भाई, कहीं भी चढ़ जा रहे हैं। It was like exhausting, really. Thanks, man. Yeah, welcome. Thank you very much. People are looking at me like, I don't know what am I doing, man. It's just vlogging, nothing else.
वैसे मैं इस रॉयल इनफील्ड में ट्रिपल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट मुझे लगता है कि अब इसको यूज़ ही करना चाहिए, अदरवाइज़ पता नहीं कब तक मैं पहुंचूंगा। है ना, ऊटी दिस वे? हाँ श्योर, थैंक यू। भाई बरसात बहुत हो रही थी, सो रेन कोट वॉज नेसेसरी फॉर मी। नाउ दिस इज बी माई लास्ट स्पॉट ऑफ दिस जर्नी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। Oh, there is me, full on ride mode. काफ़ी रफ पैचेस हैं यहाँ पर। ओह गॉड। बहुत तेज हवा चल रही है भाई इधर। कैंप साइट पर रुकना बहुत, इट वॉज अ टफ नाइट। हवा लगातार चल रही थी। सनराइज मुझे यहाँ से नहीं दिख पाया बिकॉज यहाँ पे जो मौसम है वो साफ नहीं था आज। सैडली आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट ब्यूटीफुल सनराइज। बहुत तेज हवा चल रही है और पूरा बादल से घिरा हुआ है ये पूरी वादियाँ, आप देख रहे होंगे। बस भी जाती है यहाँ से। बस का पर्टिकुलर टाइम होता है अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं नीलगिरीज में कैंप साइट पर। तो अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको बहुत पंक्चुअल होना होगा टाइम को लेकर के। यू हैव टू आस्क द प्रॉपर टाइम एंड यू बी प्रिपेयर्ड एट द राइट टाइम। फिर से बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ यहाँ से।
ये बड़ा वाला टेंट था, भर गया है बारिश से। टाटा गुड बाय गया। चल, नथिंग बट फेल्ड एक्सपेरिमेंट, नो प्रॉब्लम। क्या क्या बात कर रहे हैं? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।